गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ये लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 2 मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लास्ट टॉपिक 2.9 डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ ए RC coupled amplifier for given parameters इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर एक कॉमन इमीटर RC coupled amplifier का डायग्राम दिखाया हुआ है। द कॉमन इमीटर RC coupled amplifier is one of the simplest and elementary transistor amplifier that can be made। अब क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट सर्किट लिया है ताकि हम इसकी डिजाइन कैलकुलेशंस को आपके सामने शो करें। डोंट एक्सपेक्ट मच बूम फ्रॉम दिस लिटिल सर्किट। द मेन पर्पस ऑफ दिस सर्किट इज प्री एम्प्लीफिकेशन टू मेक वीक सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और एम्प्लीफिकेशन। इफ डिजाइंड प्रॉपरली, दिस एम्पलीफायर कैन प्रोवाइड सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये डायग्राम अभी आपके सामने दिया हुआ है। कैपेसिटर Cin इज द इनपुट DC कपलिंग कैपेसिटर विच ब्लॉक्स एनी DC component if present in the input signal from reaching the transistor Q1 base. If any external DC voltage reaches the base of transistor Q1, it will alter the biasing conditions and affects the performance of the amplifier. R1 and R2 are the biasing resistors. This network provides the transistor Q1's base with the necessary bias voltage to drive it into the active region. The region of operation where the transistor is completely switched off is called cutoff region, and the region of operation where the transistor is completely switched on like a closed switch is called saturation region. Cout is the output DC coupling capacitor. It prevents any DC voltage from entering into the succeeding stage from the present stage. Now, if this capacitor is not used, the output of the amplifier, that is Vout, will be clamped by the DC level present at the transistor collector. हमने पूर्व लेक्चर्स में भी इन्हें DC सिग्नल के रेस्पेक्ट में डीकपलिंग कैपेसिटर अथवा ब्लॉकिंग कैपेसिटर के नाम से पुकारा है, और अल्टरनेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में हम इनको कपलिंग कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। RC इज द कलेक्टर रजिस्टर एंड RE इज द emitter register. Values of collector register and emitter register are so selected that 50% of the supply voltage VCC, that is collector supply voltage, gets dropped across the collector and emitter of the transistor. This is done to ensure that the operating point is positioned at the center of the load line. 40% of the VCC is dropped across collector resistance and 10% of VCC collector supply voltage is dropped across emitter resistance. A higher voltage drop across emitter resistance will reduce the output voltage swing and so
it is a common practice to keep the voltage drop across RE is equals to 10% of collector supply voltage। तो जितने भी हम ये प्रैक्टिकल बातें आपके साथ इस लेक्चर में शेयर कर रहे हैं, एक RC कपल्ड एम्पलीफायर की डिज़ाइन इक्वेशंस इस्टेब्लिश करने में ये सहायक सिद्ध होती है। CE is the emitter bypass capacitor at zero signal condition, that means there is no input, only the quiescent current set by the biasing resistors R1 and R2 flows through the emitter resistance. This current is a direct current of magnitude few milliampere, and CE, that is emitter bypass capacitor, does nothing, क्योंकि हमें मालूम है when input signal is applied, the transistor amplifies it, and as a result a corresponding alternating current flows through the emitter resistance। तो अब हम देखते हैं कि सिंपली जो हमने इनको कपलिंग कैपेसिटर कहा था अल्टरनेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में, ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहा था डीसी सिग्नल के रेस्पेक्ट में, द जॉब ऑफ इमीटर बाईपास कैपेसिटर इज टू बाईपास दिस अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ द इमीटर करंट। और अगर ये नहीं होता, इफ इमीटर बाईपास कैपेसिटर इज नॉट देयर, द एंटायर इमीटर करंट विल फ्लो थ्रू emitter resistor and that causes a large voltage drop across it। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे, हम चाहते थे सप्लाई वोल्टेज का केवल 10% वोल्टेज ही इमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो, तो वो काम हमें करके दिया है इमीटर बाईपास कैपेसिटर ने। दिस वोल्टेज ड्रॉप गेट्स एडेड टू द बेस टू मीटर वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर and the bias settings will be altered। In reality, it is just like given a heavy negative feedback, and so it drastically reduces the gain। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एक RC कपल्ड एम्पलीफायर को डिज़ाइन करते हैं। The design of a single stage RC coupled amplifier is shown below। हम बात करते हैं इक्वेशंस के माध्यम से। The nominal value of collector current, that is IC, and HFE, that is beta, can be obtained from the transistor। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इमीटर रजिस्टर और इमीटर बाईपास कैपेसिटर को हमें डिज़ाइन करना है। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट वोल्टेज अक्रॉस द इमीटर रजिस्टर RE, that is VRE, 10% of external supply voltage, DC bias voltage 10% VCC। Voltage across collector resistor, that is VRC, is equals to 40% of the DC supply voltage, 40% of VCC। तो यहाँ पे 10% और 40% 50% हो गया है, और 50% अभी हमारे पास DC सप्लाई का बचा है। द रिमेनिंग 50% विल ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर इमीटर, दैट्स फाइन। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये चीज़ कैलकुलेट सिंपली कर सकते हैं कि व्हाट इज RC। अगर हमें कलेक्टर रजिस्टर को कैलकुलेट करना है, दैट इज 0.4 VCC अपॉन IC, एंड RE इमीटर रजिस्टर बराबर 0.1 VCC अपॉन IC। VCC हमें गिवन होगा और नॉमिनल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट भी हमें गिवन होगी। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से हम इमीटर रजिस्टर और कलेक्टर रजिस्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन द जो वोल्टेज डिवाइडर बायस नेटवर्क क्रिएट करते हैं R1 और R2, जिन्हें बाइसिंग रजिस्टर्स भी हम कहते हैं, उनको हमें किस प्रकार से डिज़ाइन करना है। तो हम जानते हैं द बेस करंट इज नथिंग बट कलेक्टर करंट अपॉन HFE, और लेट मानते हैं कि कलेक्टर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इमीटर करंट। देन लेट करंट थ्रू R1, तो R1 के थ्रू कितना करंट जा रहा है, IR1 इट इक्वल टू 10 IB,
also voltage across R2, that is VR2 must be equal to VBE, that base to emitter voltage, plus VRE. From this VR2 can be found. Therefore VR1 is equals to VCC minus VR2, or since VR1, VR2 and IR1 are found, we can find R1 and R2 using the following equations. तो इन इक्वेशंस की सहायता से हम हमारे जो बाइसिंग रजिस्टर्स हैं R1 और R2, इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइंडिंग CE, इमीटर बाईपास कैपेसिटर। Impedance of the emitter bypass capacitor should be 1/10 of RE, that is the one of the pre-assumptions, and also we know impedance of that capacitor 1/2 pi f CE. Frequency can be selected to be at 100 Hz. From this the emitter bypass capacitance value can be measured. अब हम बात करते हैं how to find Cin. Impedance of the input capacitor should be 1/10 of the transistor input impedance. That is another pre-assumption. Xcin is equals to 1/10 of Rin. अब हम Rin जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू देखें अगर, तो R1 पैरेलल R2 पैरेलल 1 प्लस HFE RE, एंड स्मॉल RE की वैल्यू हमें मालूम है ट्रांजिस्टर के लिए 25 मिलीवोल्ट पर एमीटर करंट। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम इनपुट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आपको आउटपुट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, वहाँ भी ये प्री असम्पशन आएगा कि X ऑफ C आउट इज इक्वल्स टू 1/10 R आउट। इस इक्वेशन की सहायता से हम C आउट कैलकुलेट करेंगे। अब हम एंड में बात करते हैं सेटिंग द गेन। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सुटेबल लोड रजिस्टर that is RL across the transistors collector and ground will set the gain। जैसे हमने फिगर 1 में बात की थी, एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन emitter transistor amplifier is as follows, that is voltage gain is equals to minus of RC upon RE, collector resistance upon emitter resistance, और यहाँ पर RE और RC की वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है, व्हाट इज स्मॉल RE एंड व्हाट इज स्मॉल RC, और इसकी सहायता से हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अगर हमारे पास एक RC कपल्ड एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना होगा, तो जो भी हमने ये इक्वेशंस देखी थी, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम सिंपली एक RC कपल्ड एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।